Today is lecture number 7. And in the previous lecture, we had seen a very important type of series parallel combination. And we also did a bit of polar and non-polar molecules. So today is lecture number 7, where we are going to derive the capacitance for what we did in the last lecture. Before that, I have 2 more formulas to introduce to you. So I hope all of you are ready. All of you are in front of your desk. You have your books. And there are 2 formulas that we don't have derivation, but we need to know these formulas. So the first formula is for a spherical capacitor. So for a spherical capacitor, or how does a spherical capacitor look like? We have already seen when we were doing types of capacitors. They are like shells. So you have an inner shell, which is positively charged. And then you have an outer shell, which is there. And we have grounded this part of the shell. And there is electrostatic induction on the inner part of the second shell. And this is how the spherical capacitor looks like. And it has an inner radius. The radius of this one is A, and the outer radius is B. So you can clearly see that B is greater than A here. B is the radius of the outer shell, and therefore the capacitance, you do not have a derivation. You have to remember this formula, that is 4 pi epsilon naught AB upon B minus A. So this is the case of a spherical capacitor, which you don't have the derivation. Normally all your questions are going to be strictly to parallel plate capacitor. Next, in the case of a cylindrical capacitor, we have a inner cylinder. We have an inner cylinder, and this is what it will look like. And they are coaxial. Basically, this is a coaxial structure. And we will have another, cylinder enclosed by it. And as you know, capacitor has to be grounded, and therefore there will be a negative sign on the inner part of this capacitor. And the capacitance is given by 2 pi epsilon naught L. And again, A and B are nothing but the radius of this. Smaller one is A, and the radius of this bigger one is B. So we're looking at the radius, and so A and B, and L is nothing but the length of this particular capacitor or cylindrical capacitor. So this only formula is required, no derivation will be asked. So can you just quickly take down the diagram and the formula and just give the title as spherical capacitor? That's it. Just write the formula and just draw the diagram and just write capacitance of a spherical capacitor. This is the capacitance of a spherical capacitor. So we already know what is a parallel plate capacitor. The parallel plate capacitor का capacitance हमने discuss किया है. उसके बीच में D है, उसका area है, dielectric constant है, बीच में electric field है, area of the plates होता है यहाँ पर. तो हमने इसका already derivation किया है, A epsilon naught by D. Or in other words, it is Ka epsilon naught upon D. So if the medium is air in between, then we take K as 1. So we have 3 types and 3 formulas, but out of which the most important is nothing but the parallel plate capacitor, for which the capacitance is Ka epsilon naught A by D. Ka epsilon naught by D. Just write the formula down.
Just tell me when it is done. Done. Okay. This is cylindrical capacitor. Again, just write capacitance of a cylindrical capacitor, mention the formula and the diagram. So in your textbook, they have mentioned the formula, but they have not drawn the diagram, assuming that it is self-explanatory. No, we have just not written the formula, dear. We just made the diagram that time. Akshita. Yeah, diagram tha, formula nahi tha. Yes. That time we were just giving you the that kitne type ke hote hain. Okay. So I hope everyone has completed. So now let's go to this. What we did last yesterday's lecture, we did this where you can see that this arrangement is equivalent to capacitors in series. अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, अभी इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालना है खुद से. तो अगर आप देखेंगे, कैन आई से, अभी ध्यान से देखना मैं क्या लिख रही हूँ. ये जो हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर, that is nothing but this kind of a diagram where we have said that there is a dielectric here K1, there is a dielectric here K2. So there is a material which is filled here and there is a material half which is filled inside this capacitor. और इसका D डिवाइड हुआ है, मतलब इधर D/2 है और इधर भी D/2. ये एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड हुआ है. तो इसको लिखना कैसा है, C1 इज इक्वल टू, फर्स्ट पॉइंट, C1 is equal to K1 epsilon naught A upon D/2. Do you agree? C1 will be K1 epsilon naught A. A तो दोनों का सेम है क्योंकि इसका A जो है दोनों मटेरियल का सेम है, but D D/2 है. Similarly, C2 is equal to K2 epsilon naught A upon D/2.
इस तरीके से आपके पास C1 और C2 है। अब आपको क्या करना है, ये जो C1 और C2 है दोनों को कैसे लेना है, सीरीज में। So you know CS का formula, we can use any formula, you can use 1 upon CS also, or you can use CS is equal to product upon sum also. Is that clear? Either you can use C1 C2 upon C1 plus C2, or you can use the formula 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2. So I am using this formula. So I'm taking this as point number 3. So 1 upon CS is equal to 1 upon C1. ये upon हो जाएगा. Can I say this becomes 2K1 epsilon naught A upon D? चलेगा, वो 2 ऊपर चला जाएगा. And this is 2K2 epsilon naught A upon D. ये ऐसा हो जाएगा. तो जब हम इसको उल्टा लिखेंगे, D ऊपर चला जाएगा और नीचे हमें मिलेगा 2K1 epsilon naught A plus D upon 2K2 epsilon naught A. I hope you're getting this. So this will become, इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, D upon, yes, 2 epsilon naught A कॉमन आ जाएगा, एंड इधर आएगा 1 upon K1 plus 1 upon K2, right? So this will be nothing but D upon 2 epsilon naught A, और ये हो जाएगा K2 plus K1 upon K1 K2. क्लियर है? दिस इज इक्वल टू 1 upon CS. ये 1 upon CS हो जाएगा. इसका ये मतलब है CS इसका उल्टा है, एंड देयरफॉर CS विल बिकम CS उसका उल्टा है, देयरफॉर CS क्या हो जाएगा, CS हो जाएगा, CS क्या हो जाएगा, इसका उल्टा. So I am writing it as 2 epsilon naught A upon D, और यहाँ आएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. ध्यान से सुनना मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ये आपको खुद से करना होता है. सो C1 एक पॉइंट है जहां हम K1 एप्सिलॉन नॉट A by D हमें मिल रहा है. C2 is 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A by D हमें मिल रहा है. दोनों सीरीज में है, क्योंकि हमने बोला है पहले ही इस डायग्राम को लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि दिस अरेंजमेंट इज नथिंग बट 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज. तो हम सीरीज का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और इसमें हमने क्या कॉमन लिया है, हमने D अपॉन ये जो पार्ट है दैट इज D कॉमन है हमारे लिए, एप्सिलॉन नॉट A, ये पार्ट दोनों में कॉमन है. तो हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, और हमें बच रहा है 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2. फिर हमने इसका सॉल्व किया एलसीएम निकाल के K2 प्लस K1 अपॉन K1 K2, राइट. तो हमारा जो आने वाला है फॉर्मूला वो कुछ ऐसे दिखेगा. तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं CS इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं, टू यहाँ नहीं लिखेंगे, अंदर लिख देंगे. सो आई विल जस्ट राइट इट एज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और इसको हम लिखेंगे 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, बिकॉज एग्जाम में एमसीक्यू में ये काफी बार पूछा जाता है. इट्स देयर इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. अब कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस, ये वाला पार्ट क्या है? एनीबडी हु कैन गेस व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट A by D? Capacitance for air, very good, Aditya, Takshita, Tejas. So this is the capacitance for air. So CS is equal to C of air, जिसको आप C नॉट भी बोल सकते हैं, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. एनसीईआरटी के बुक्स में ये 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 को K इक्विवेलेंट भी लिखते हैं वो लोग. This entire thing is also written as K equivalent. There's nothing to be worried about. They assume that you know that it is the product upon the sum. But 2K1 K2 upon K1 plus K2 आता है. So इसको हम लोग CS is equal to C naught भी लिख सकते हैं. Instead of C of air, we can write anything which we write. Naught is nothing but for air or vacuum, K1 plus K2. So this is what we are going to get.
I hope you are getting it. Okay, so this is how we calculate. That is, पहले हम C1 C2 लिखते हैं, फिर अपना जो रेगुलर सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला है वो लगाते हैं. Okay, so I hope this slide is understood. Please take down slide number 5. Please take down slide number 5. Videos of electrostatics lecture number 6 onwards will be separately uploaded for both the batches. So you know, it will be separate for yours and it will separate for the August batch. You can give this, it comes in the note like yesterday आपने दिया रहेगा ना, इसको ये draw किया रहेगा, right? So this is basically a dielectric arrangement. It is basically the arrangement of dielectric in a parallel plate capacitor. So किस तरीके से वो जो equivalent मिल रहा है वो series की तरह behave होता है. So you can write the arrangement of dielectric in a parallel plate capacitor. This will be on page number 207, but they have not derived it, Isha. They have just 207 या 208 पे उन्होंने mention किया है, but उन्होंने उसको derive नहीं किया है. हम derive इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एग्जाम में derive करना पड़ेगा और हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमें करना ही पड़ेगा. We will have to do it. They have not derived it. So when they don't derive it, we have to do it. Actually, it is uploaded, Priyanka. Everything is on the channel. Yeah. So tonight I will put everything in order and then send you all the link. Okay. Is it completed? Slide number 5 is completed, everybody. Okay. Slide number 6. I hope you're getting it because the next one I would like you to try. Yes, Atharva. Just give me a minute. Let people
finish this slide, then I'll go back to the other slide. I hope you're getting it. I hope you're understanding how we can derive for anything. So now we will see for other conditions as well. Okay, so Atharva, previous slide is this. Please tell me when it is done, Atharva. Done? Okay. Isha, you can say the arrangement of the dielectric in a parallel plate capacitor. Isha, arrangement of a dielectric in a parallel plate capacitor. So this next one, can you tell me what should I write for C1 and C2? This next one, what should I write for C1 and C2? What will be the difference? Yes, very good. So I can see people answering. इस बार C1 जो है, what will be C1 as the first point? C1 will be K1 epsilon naught A by 2. याद है? और D as it is है. A by 2 हो जाएगा. C2 will be K2 epsilon naught A upon 2D. Now, how are they connected? What is this arrangement? It's in parallel. So you know what you have to do. Cp is equal to C1 plus C2. Can you do it? Will you be able to do it? Add कर दो दोनों को. करो. Because we are considering it as air only, Ishan. Epsilon naught will always be epsilon naught only. Because air है ना medium. That is permittivity concept. 11th standard, we have taught you epsilon is equal to k epsilon naught. So अगर medium air है तो k1 हो रहा है, उतना ही है. Permittivity तो आएगा ही, मतलब. I hope you are getting it. It is same only, no, everywhere. मतलब ये क्यों doubt आ रहा है? क्योंकि अगर medium में कुछ और है तो हम k epsilon naught. No, it's always 8.854 into 10 raised to minus 12 only.
Epsilon naught is always 8.854 into 10 raised to minus 12 only. That's absolutely correct. K2 epsilon naught A upon D, 2D. 9 into 10 raised to 9 is 1 upon 4 pi epsilon naught. 1 upon 4 pi. Electrostatic constant is 9 into 10 raised to 9. So यहाँ पर मैं epsilon naught A by D कॉमन ले रही हूँ. मुझे मिलेगा K1 plus K2 upon 2. I hope you should always keep epsilon naught A by D separate. क्या सबको यही मिल रहा है? C of air is K1 plus K2 upon 2. जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Cp is equal to C naught K1 plus K2 upon 2. ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसको. This is the required answer. जिसको K1 plus K2 को K equivalent भी बोलते हैं. So whatever question I give you in series and parallel, you will be able to solve, right? Whatever I give you in series and parallel, you'll be able to solve, right? Because there is another type. This is just the basic part where पूरा भरते नहीं है उसको, मतलब थोड़ा सा ही भरते हैं, तो थिकनेस आता है उसका. So we have different types which we are going to study. So पहले ये तो क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके लेवल पढ़ेंगे. Because capacitance is a very very important part. मतलब सारे questions capacitance पे ही होते हैं. Yes, K equivalent is K1 plus K2 upon 2 only, Divya. Yes. Okay. Can I move ahead? Okay. So we can derive for anything now because अभी हमें एक idea मिल गया कि कैसे derive करना है. तो ये सब cases में step ज्यादा होगा. यहाँ पे ऐसा होगा कि 2 बार parallel लेना है, फिर series लेना है, right? So it depends like how they ask you. I think we already did. At least इतना recognize आना चाहिए. Suppose I give you something like this. देखते हैं किसको मिलता है, कौन कर पाता है. Suppose I give you something like this. I'll just, ये K1 है और मैंने कहा ये A/3 है और मैंने आपसे कहा कि यहाँ K2 है. तो इतना डिस्टेंस कितना होगा? हाउ मच इज दिस मच? कितना होगा? ये तो D है. अगर फर्स्ट पार्ट A/3 है तो हाउ मच इज द अदर पार्ट? बचेगा कितना? यस, वेरी गुड. सो 2A/3 आएगा यहाँ पे. यहाँ पे क्या आएगा? 2A/3 आएगा. गॉट इट? अब अगर ऐसा है तो क्या हम C1 और C2 निकाल सकते हैं? व्हाट इज C1? इट विल बिकम K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3 हो जाएगा यहाँ और D, करेक्ट. और ये सेकेंड C2 क्या आएगा? इट विल बिकम K2 एप्सिलॉन नॉट 2A/3 इंटू D. कैसा है ये अरेंजमेंट? सीरीज है या पैरेलल है? व्हाट इज दिस अरेंजमेंट? सीरीज है क्या पैरेलल है? पैरेलल अरेंजमेंट है. वेरी गुड. सो कैन you can आराम से do it. Please solve and give me the answer. Please add them up and tell me what you're getting. Please add them up and see what you're getting.
Okay, so I have many answers in the chat box. Let's see what you get. It is K1 epsilon naught A upon 3D plus K2 epsilon naught 2A upon 3D. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? It will be epsilon naught A upon 3D. हम अगर कॉमन लेते तो हमें K1 plus 2K2 मिल रहा है, राइट? यस, सो ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A by D तो हमारा C of air है. So I hope you are getting something like this. Your CP और C equivalent यहाँ पे आ रहा है K1 plus 2K2 upon 3. So what I'm trying to tell you is कि हर बार आपको अगर डिफरेंट दिया है ना तो आपको निकालना पड़ेगा. समझ में आ रहा है क्या? हर बार सेम नहीं हो सकता है. ईच टाइम यू हैव टू चेक कि आपका एरिया कितना है, के कितना है. हम थोड़ा थोड़ा लेवल आपका बढ़ा रहे हैं. पहले हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ते थे, C is equal to K epsilon और A by D पढ़ते थे. बट अगर डाइलेक्ट्रिक की अरेंजमेंट अंदर डिफरेंट है तो फिर समझ जाना है कि मुझे डिराइव करना पड़ेगा. सो दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द अनसॉल्व्ड सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक. सो वी विल बी डूइंग दैट वंस वी फिनिश द कैपेसिटर पार्ट. हाँ, 3 को कैसे भी लिख दो ना, डिनोमिनेटर में ही है वो, चलेगा ना, और कुछ नहीं है. यस, अगर डायग्राम आता है तो आप कर पाएंगे. यस, करेक्ट. हो गया है सबका? हाँ, के इक्विवेलेंट अभी K1 plus 2K2 upon 3 होगा. पूरा लेना पड़ेगा ना, के का जो भी सी एयर के बाकी जो सब कुछ बचा है वो के इक्विवेलेंट चला जाएगा. अब मैं बताऊंगी आपको कि एनसीईआरटी में मतलब नीट में इसका क्वेश्चन कैसे आता है. ओके, सो इन लेटर स्टेज दिस विल बी इम्पोर्टेंट. आपको उसका टाइप बता देंगे कि वो कैसे आता है. सो नाउ लेट्स कम टू एन इम्पोर्टेंट नोट. ओके, सो यू विल कम अक्रॉस, ये नोट में जाएगा जो अभी मैं समझा रही हूँ. यू विल कम अक्रॉस ऑयल ड्रॉप. क्या है? ऑयल ड्रॉप. हर एक ऑयल का जो ड्रॉपलेट रहता है, जैसे हमने बबल किया था, याद है कि बबल को हम बबल देंगे तो वो एक्सपांड होता है करके, यू नो. सो ऑयल ड्रॉप में क्या होता है कि हर एक ऑयल ड्रॉप कैरीज अ चार्ज स्मॉल क्यू. एक ऑयल का ड्रॉपलेट का चार्ज हम लोग स्मॉल क्यू लेते हैं. तो अगर मैंने हंड्रेड्स ऑफ ड्रॉप्स डाल दिए तो ड्रॉप का साइज बड़ा हो जाएगा. सो वी से दैट द चार्ज ऑफ द बिग ड्रॉप, चार्ज ऑफ द बिग ड्रॉप, इसलिए मैं कैपिटल क्यू लिख रही हूं, इज इक्वल टू n टाइम्स द चार्ज ऑफ ईच ड्रॉपलेट. ड्रॉपलेट समझता है, राइट? तो अभी ये जो कैपेसिटर की एप्लीकेशन होती है, आप बहुत सारे जगह पे मार्वल में देखेंगे, आप एमटीजी में देखेंगे, आप यूएसएस में देखेंगे, हर जगह पे सबका रिलेशन फाइंड आउट करना होता है. कि अगर मैंने कहा कि एक ड्रॉपलेट के पास 2 कूलम का चार्ज है तो 100 ड्रॉपलेट्स के पास कितना चार्ज होगा, मतलब जब 100 ड्रॉपलेट्स गिरेंगे एक जगह पर तो पूरा चार्ज कितना होगा. ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी 200. इस केस में अगर 100 ड्रॉपलेट है और हर एक का चार्ज, हर एक ड्रॉपलेट का चार्ज जो है वो 2 कूलम है, तो बड़े ड्रॉप का कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा. तो ये चार्ज की डेफिनेशन, मतलब दिस इज द चार्ज का रिलेशन. द चार्ज ऑफ द बिग ड्रॉप is equal to n times of the charge of each droplet. अभी ध्यान से सुनना, लिखना मत पहले,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट में समझा रही हूँ, पहले समझ के ले लो, फिर आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा। सेकंड वाला है कि अब ये ड्रॉपलेट जो होता है वो क्या शेप है, हु विल टेल मी? ड्रॉपलेट, जब आप एक ड्रॉप के बारे में विजुअलाइज करते हैं तो उसकी शेप क्या होती है? वेरी गुड दिव्या, भक्ति, वेरी गुड, स्फेरिकल होती है। इसका मतलब है द वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप, ध्यान से देखना, द वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप is equal to n times the volume of each droplet. The volume of each droplet. Okay, so ये भूलना नहीं है. It is the volume of the big drop is equal to n into the volume of each droplet. Now, what is the volume of the big drop? 4/3 pi capital R cube is the volume of the big drop. समझ में आ रहा है? कैपिटल आर मतलब बड़े ड्रॉप का रेडियस है, इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, छोटे, हर एक छोटे ड्रॉपलेट का। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4/3 और पाई कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, तो आपको कैपिटल आर क्या मिल रहा है? रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप, जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसका रेडियस होगा n⁻⁴ स्मॉल आर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सोचोगे ये कहाँ यूज होता है? अभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसके लिए? वो लोग बोलेंगे, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रही हूँ। वो पूछेंगे कि रिलेशन क्या है किसका? वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप और ड्रॉपलेट, जो एक एक छोटा ड्रॉपलेट है उसका रिलेशन क्या है? अगर नंबर ऑफ ड्रॉपलेट 64 है, क्या रिलेशन होगा? अगर 64 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ज्वाइन होकर बड़ा ड्रॉपलेट बन रहा है, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप and its relation to the droplet? Very good. I can see Aditya, Anjali, Tejas answering correctly. Varsha. 64 droplets. 64 droplets. So 64 raised to 1/3 कितना हुआ? क्यूब रूट निकालना है. 64 raised to 1/3 क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है? 4 होता है. तो व्हाट इज द रिलेशन? क्या सबको मिल रहा है? कैपिटल आर इज 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर. मिल रहा है सबको, राइट? 64 का क्यूब रूट क्या होगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. समझ में आ रहा है क्या बात हो रही है? तो वो टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें ये फॉर्मूला लगेगा. समझ में आया? What is the relation between the charge of the big drop and the charge of every droplet? डायरेक्ट है, n टाइम्स q है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. बट what is the radius का relation? n⁻⁴ small r. या यस मानव, वो क्यूब वाला ही नंबर देंगे, वो इतना तो तुमको हेल्प ही करेंगे ना भाई, इतना भी नहीं, इतना भी कमीने नहीं है. ठीक है. नाउ yes, so please take it down everybody, then I'll go to the next point. Please take it down and then we do the next point. क्योंकि जब मैं एमसीक्यू करूँ तो ये सब आपको आना ही चाहिए. आई एम नॉट गोइंग टू रीडू इट because I am giving you the recorded lectures also, right? So I want everyone's attention in the classroom. देखो recorded lectures सुनने में भी time लगता है, if you don't know. अगर आप actively एक online lecture attend करते तो बहुत time बचता है. You know, बोलना आसान है कि you know I will listen to the lecture again, but as the time goes और portion बढ़ते जाएगा, how many lectures will you listen online? You know, it's always better to attend a lecture online compared to listening to a recorded lecture. Remember that always. Please take it down. Yes, Ishan. It is very important for all exam, for the board exam, for everything.
Done, everybody? So these kind of questions are expected, which is basically the effect of electrostatics on a droplet. Matlab, everything in nature, which is the most strongest force, isn't it? We have so many types of force. We have gravitational force, we have nuclear force, we have electrostatic force. So you should know that its effect, yes, we have the magnetic force, but electrostatic force is really very, very strong. So please remember, electrostatic force is more stronger than gravitational force also. So it is even observed in a tiny, it is observed in a bubble, it is observed in a droplet. So it is very, very important for you to understand. Yes, Deepak, very good. So the third point, yes, 36 times more, right? So now the third point. So कोई भी spherical capacitor का आज हमने एक फॉर्मूला देखा था, बट वो कब होता है? जब वो शेल होता है, यू नो। आज जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला आपके नोटबुक में लिखा, ये वाला फॉर्मूला, दिस इज व्हेन इट इज अ शेल, मतलब इनर होना चाहिए, आउटर होना चाहिए। बट जब हम ड्रॉपलेट कंसिडर करते हैं, तो क्या इनर शेल आउटर शेल होता है? क्या इनर शेल आउटर शेल होता है? नो, देर इज नो इनर और आउटर शेल. So what is the capacitance formula? The capacitance formula for a droplet is 4 pi epsilon naught capital R. ये उसका फॉर्मूला है. मतलब एक सॉलिड स्फीयर अगर रहेगा, पूरा सॉलिड स्फीयर रहेगा, तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, वेर कैपिटल आर इज द रेडियस. मतलब मान लो कि मैंने आपसे कहा कि आई वांट टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ. क्या बोला मैंने? आई वांट टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ. तो क्या हम इस फॉर्मूला से निकाल पाएंगे? क्या लगता है आपको? क्या हम इससे निकाल पाएंगे? Yes or no? What is the radius of the earth? What is the radius of the earth? Yes, 6,400 kilometers is the radius of the earth. तो अगर मैंने ऐसे डाला 6,400 into 10 to the power, क्या होगा ये? 3 upon, अच्छा, ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, देखो 1 upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10 raised to 9 है. बट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी 9 into 10 raised to 9 नीचे आएगा. So can you solve this 64 by 9 into 10 to the power? मान लेते ये 5 गया यहाँ, -9 ऊपर गया. ठीक है, so ये कितना हो जाएगा? Can anybody tell me how much this will be? 7.11 कुछ आ रहा है. So ये 7.11 आ रहा है into 10 raised to कितना आ रहा है? -4. Can I write it as 711 into 10 raised to -6? चलेगा क्या? Multiply and divide by 100 किया मैंने, चलेगा? So this is written as 711 microfarad. ये कुछ बुक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ. तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ? अर्थ की कैपेसिटी होती है 711 माइक्रोफैरड. याद रहेगा? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहता है, उसका कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं एज लॉन्ग एज आई नो द रेडियस. इज दैट क्लियर? सो व्हाट आई हैव डिराइव्ड हियर इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ. यहाँ पर मैंने जो बोला है, ये कैपेसिटी ऑफ अर्थ का मैंने आपको डिराइव करके दिया है. और इसका आंसर क्या है? 711 माइक्रोफैरड. ये भूलना ही नहीं है, ये भूलना ही नहीं है. प्लीज टेक इट डाउन प्लीज.
Please tell me when it is done. ओके सो ये फॉर्मूला से हम ड्रॉपलेट की तरफ भी आते हैं. मतलब मैं ड्रॉपलेट का देख रही थी. 9 into 10 raised to 9 ना. What is the electrostatic constant अथर्व? 1/4 pi epsilon नॉट क्या होता है भाई? ये तो भूल ही नहीं सकते आप. 9 into 10 to the power 9 is the electrostatic constant. 9 into 10 raised to 9 is the electrostatic constant. Yes. So what happened here? ये उल्टा है ना अभी. वो 4 pi epsilon नॉट डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है, तो इसका उल्टा हो जाएगा ना. बराबर. एग्रीड. ओके सो अभी हम लोग वही कैपेसिटेंस को हम ड्रॉपलेट के इसमें डाल रहे हैं. सो अगर हम ड्रॉपलेट के इसमें डाल रहे हैं सो C इज इक्वल टू अभी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R होता है. C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R होता है. अब हम ये ड्रॉपलेट में अप्लाई कर रहे हैं. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन C एंड R? कैन आई से C is directly proportional to radius? Can I say that C is directly proportional to radius? अगर C directly proportional to radius है, अब तुम मुझे बताओ रेडियस का क्या रिलेशन है, रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप का क्या रिलेशन है? n raised to 1/3 of small r रिलेशन. अगर कैपिटल R ऐसा है तो कैन वी से दैट कैपिटल C, द कैपेसिटेंस ऑफ द बिग ड्रॉप, whenever I write capital C, that means it is the capacitance of the big drop, will also be n raised to 1/3 small c. समझ रहे हैं? तो इसका फॉर्मूला जो है वो exactly like radius हो जाएगा. Exactly like radius हो जाएगा. This will be C is equal to n raised to 1/3 of small c. Got it? Is it clear? तो हमें ये दोनों मिल गया. हमारे पास R है, हमारे पास Q है और हमारे पास C है. तो R जो है, R का रिलेशन क्या है? n raised to 1/3 small r. Q का रिलेशन क्या है? n times of Q. और हमें मिला कि C is equal to 4 pi epsilon naught capital R और C is directly proportional to radius क्योंकि 4 pi epsilon naught तो constant है. तो C जो C के साथ है वही R के साथ होगा. मतलब द फॉर्मूला विल रिमेन सेम बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो द कैपेसिटेंस ऑफ द बिग ड्रॉपलेट is n raised to 1/3 of the capacitance of each small droplet. यहां तक क्लियर हो गया सबको? कैपिटल C is n raised to 1/3 of small c. अब क्या होगा? मेरे पास Q है, मेरे पास C है, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ? जब भी मेरे पास Q है और मेरे पास C है, what can I derive? Very good. The entire class has said that we can derive V. We can derive the potential of the big drop. What is capital V? Capital V will be capital Q upon capital C. Do you agree? Capital Q upon capital C because Q is equal to CV. So V is equal to Q by C. Q is equal to CV. So V is equal to Q by C. Q is equal to CV. So V is equal to Q by C. बैठ गया दिमाग में? V is equal to Q by C. V is equal to Q by C. V is equal to Q by C. अब अगर V is equal to Q by C है तो क्या Q क्या है? Q क्या है? Q है n छोटा q. C क्या है? n raised to 1/3 of छोटा c.
Are you understanding? What is chota q upon chota c? Chota q upon chota c will be chota v, right? So अगर वो छोटा v है तो ये n रेस टू कितना आएगा? ये n रेस टू कितना आएगा? ये n यहाँ 1 है, नीचे 1/3 है, मतलब ये ऊपर होगा 1 माइनस 1/3 into छोटा v. How much is that going to give us? n raised to, can I say it will be 2/3 of छोटा v. अभी v का भी रिलेशन मिल गया. अगर मैंने आपसे कहा कि पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप चाहिए, it will be n raised to 2/3 of छोटा v. This is the relation of the potential of the big droplet. जब छोटे 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 ड्रॉपलेट्स जब कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप बनेगा तो हमें n रेस टू 2/3 लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा? n रेस टू 2/3 लेना पड़ेगा. क्लियर है? पक्का? सो ये रिलेशन भी आ गया हमारे पास. तो हमारे पास क्या है? अभी Q है, R है, C है और अभी हमारे पास V भी है. तो सवाल ये होता है कि नेक्स्ट कौन सी क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं? कैन आई से आई कैन फाइंड आउट एनर्जी ऑल्सो? बिकॉज एनर्जी जो होता है W के 3 फॉर्मूलाज है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV, हाफ Q स्क्वायर बाई CB हम निकाल सकते हैं. ये स्लाइड नंबर 15, प्लीज टेक इट डाउन क्विकली, देन वील प्रोसीड टू एनर्जी. Then we proceed to energy. Please take it down now. कुछ भी नहीं है ना उसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो जो आर है वही सी का रिलेशन रहेगा. ये 4π और कांस्टेंट है. तो जो आर का आया है तुमको, कैपिटल आर का क्या है? n⁻⁴ है ना, तो फिर सी का भी वही आएगा. इसमें कुछ है ही नहीं ना, कुछ और फैक्टर नहीं है ना. 4π इज अ कांस्टेंट. तो जब कांस्टेंट होता है तो दो चीजों के बीच हम कंपेयर कर सकते हैं. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिकॉज विदाउट दिस we cannot solve anything. Is it completed? ओके. तो अभी आपके बुक में सब कुछ है. हाँ, अभी आपके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है. मेरे पास, आपके पास Q है, आपके पास C है, आपके पास V है, यस और नो, आपके पास R है. अभी आपको सोचना है व्हाट विल बी एनर्जी. एनर्जी विल बी W. You can use any formula. You can use any formula. आप हाफ CV स्क्वायर यूज कर सकते हैं, आप हाफ QV यूज कर सकते हैं. So I am using half CV square. Is it okay? I can use any formula. I can use half QV, कुछ भी आप यूज करो, आंसर तो वही आने वाला है. So half C क्या है? C का क्या रिलेशन है? n raised to 1/3 small c.
V का क्या रिलेशन है? n raised to 2/3 of small v the whole square. तो इसको ओपन अप करने वाले हैं, तो हाफ n raised to 1/3 into छोटा c n raised to 4/3 of छोटा v का square. Now you tell me what you will get. Half cv square बाजू में आएगा, n raised to कितना आएगा? n raised to कितना आएगा? 1/3 plus 4/3 क्या होता है? n/3 plus 1/3 plus 4/3 कितना होता है? Are you getting 5/3? Everyone is getting 5/3. अच्छा, now when you look at this formula, ये वाला पार्ट क्या है? हाफ cv स्क्वायर वाला पार्ट क्या है? हाफ cv स्क्वायर, छोटा c छोटा v स्क्वायर. यस, वेरी गुड. तो यानी कि जो कैपिटल W आ रहा है, कैपिटल W, आर यू गेटिंग n raised to 5/3 of छोटा w? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको क्या मिल रहा है? n raised to 5/3 of छोटा w. दैट विल बी द फाइनल आंसर. यानी कि हमारे पास w भी आ गया. अभी क्लियर है? ये लिख के रखे फटाफट, ये लिख के रखे फटाफट. सो ऑयल ड्रॉप का चार्ज, नाउ ये अगर आपको आ जाता है ना, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये अगर आ गया तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व कर पाएंगे. Completed? Okay, so let's put everything on one place. Let's put everything for oil drop. For oil drop, I'm putting everything on one page. So you can also do the same so that we can refer it easier. The first formula is capital Q is equal to n times of small q. The second formula is capital R is equal to n raised to 1/3 small r. Third is capital C is equal to n raised to 1/3 small c. Fourth is Q नहीं, V is equal to n raised to 2/3 of small v. And the fifth one is that the W is n raised to 5/3 of small w. And we also know the capacity of Earth, and the capacity of Earth is 711 microfarad. This is what we did till now. This is what we did till now. Okay, can I ask you a question? Will you be able to do it? I want you to tell me what is the relation
between the surface charge density of the big droplet, okay, to the surface charge density of each droplet. क्या आप बता पाएंगे मुझे? ट्राई करेंगे आप? यस, प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई. देखते हैं किसको आएगा. आई एम गिविंग यू 1 minute टू ट्राई. It is not very difficult. It is easy. What is surface charge density formula? What is surface charge density formula? Charge upon area. Very good. Surface charge density is charge upon area. Yes, जो आप लोग Q upon A लिख रहे हैं या Q upon DS लिख रहे हैं, it is charge upon area. So very good. Ankit, Manav, Devendra, आदित्य, दिव्या, सत्यवीर. अब आप लोग ट्राई करो और मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा. आपके पास सारा डेटा है. एन रेस टू कितना होगा ये मुझे, यानी कि मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ. ओके, सो ईशा इज ऑलरेडी गिवन मी द आंसर. वेरी गुड ईशा. ईशा इज फ्रॉम कांदिवली. ओके, तो कांदिवली ने आंसर दे दिया. अंधेरी, दहीसर, बोरवली, कहाँ हूँ? I'm waiting for the others to answer. Isha has given me the correct answer. Yes, Takshita, very good. Takshita is from Andheri. Okay, so Takshita has also given me the answer. Andheri और कांदिवली का हो गया. दहीसर, बोरीवली कॉलिंग. अभी दहीसर और बोरीवली देते हैं कि नहीं, देखा जाएगा. Sigma is charge upon area. What is the area of an oil drop? क्या होगा area? What is the area of an oil drop? ऑयल ड्रॉप क्या कंसिडर किया है हमने? क्या कंसिडर किया है? क्या शेप कंसिडर हो रहा है? स्फेरिकल कंसिडर हो रहा है ना? यस. सो एरिया क्या होता है? 4 पाई. कुछ लोग मेरे को 4 पाई r³ बता रहे इधर. 4 पाई r² होता है. 4/3 नहीं. 4/3 तो अपना πr³ वॉल्यूम है. 4 पाई r² होता है कि नहीं? यस, 4 पाई r² होता है. अभी ट्राई करो, सबको आना चाहिए अभी. अंधेरी और कांदिवली ने आंसर किया. बोरीवली, दहीसर, चलो मुझे सुनना है आपसे भी आंसर. एक जन तो आंसर करें. सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया. चार्ज अपॉन एरिया बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. आई एम स्टिल वेटिंग. हाँ, फॉर्मूला तू बराबर डाल रहा है. अभी आंसर लेके आ नीरज. फॉर्मूला बराबर है जो तू बोल रहा है, अभी इसमें डाल फॉर्मूला. जैसे हमने प्रीवियस जो डेरिवेशंस किए हैं वैसे ही डाल. मानव, थोड़ा और सब्स्टिट्यूट करना है. आपका Q सब्स्टिट्यूशन बराबर है, R का भी सब्स्टिट्यूट करो. R ने सब्स्टिट्यूट नहीं किया मानव, इसकी वजह से नहीं आ रहा है वो.
Okay, so now I have everyone answering in the chat box. Very good. So if it is so, then let us check that how many of you all did it. So sigma is charge upon area. ये सब लोगों ने लिखा था 4 pi capital R square. इतना लिखा था सबने. फिर what is capital Q? Capital Q is n times of छोटा q upon 4 pi. What is capital R? N raised to 1/3 छोटा r the whole square. याद है? फिर आपको क्या करना था? n क्यूब अपॉन 4 पाई, ये n रेस टू क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू आर स्क्वायर करना था. किया आपने? ओके, ऐसे ही किया था. ओके, फिर यहाँ पर q और 4 पाई और ये छोटा आर स्क्वायर क्या बन गया? q अपॉन 4 पाई छोटा आर स्क्वायर क्या बन गया? छोटा सिग्मा बन गया. छोटा सिग्मा बन गया. तो क्या बच रहा? क्या है? n रेस टू 1 माइनस 2/3. ये 2/3 ऊपर जाएगा तो -2/3 हो जाएगा. छोटा सिग्मा होगा. छोटा सिग्मा. इसका मतलब है दिस बिकम्स n रेस टू 1/3 ऑफ छोटा सिग्मा. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? इट इज नॉट नेसेसरी. इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई हैव टू लिमिट इट टू ओनली QC या जो भी डेरिवेशंस मैंने करवाए हैं. यू नो, अगर आप जेई एडवांस वगैरह देते हैं तो इट कैन बी एनीथिंग दैट यू हैव टू, यस, इट कैन बी एनीथिंग दैट यू हैव टू डिराइव. सो बेस्ड ऑन दिस हमारा एक और फॉर्मूला बन गया. यहाँ पे क्या बन गया? हमें n रेस टू क्या मिला? यहाँ पे 1/3 और छोटा सिग्मा. ऐसे में बहुत सारे फॉर्मूलाज बना सकती हूँ. आप समझ रहे हैं? यस और नो? पक्का? तो ये 7 फॉर्मूलाज ऑफ ऑयल ड्रॉप आपको याद रहना चाहिए. प्लीज टेक दिस डाउन. सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है बड़े ड्रॉपलेट का. सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये बड़े ड्रॉपलेट का. प्लीज टेक इट डाउन क्विकली. डन, कंप्लीटेड. यस. तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया? हमने डिराइव किया. किसका डेरिवेशन किया? सीरीज अरेंजमेंट का डेरिवेशन किया. नो नो बेटा, नॉट रिक्वायर्ड. मानव, नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, वो नहीं करने की जरूरत है. सो पहले हमने दो कैपेसिटर को सीरीज का रिलेशन लाया जो हमें मिल रहा है दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला which is C0 to K1 K2 upon K1 plus K2. I hope this is very very clear to you because ये very important formula है. उसके बाद हमने parallel arrangement का formula किया. राइट तो ये सब आप खुद से डिराइव कर रहे हैं. अगर एरिया चेंज हुआ, डी चेंज हुआ, आप कर पाएंगे. क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व करने वाले हैं. तभी आपको क्लिक होना चाहिए कि क्या क्या चेंज हो रहा है. एरिया चेंज हो रहा है, डी चेंज हो रहा है, K1 K2 तो वैसे भी चेंज होगा क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल डाल के देख रहे हैं. राइट. फिर हमने देखा कि ऐसे भी अरेंजमेंट्स होते हैं जो सीरीज पैरेलल होते हैं. सो दिस इज अ सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट. दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज ऑल्सो द पैरेलल सीरीज. ऐसे वाले भी अरेंजमेंट्स हो सकते हैं. राइट. हमने थोड़ा सा एरिया चेंज करके भी डिराइव करके आपको दिखाया. मतलब कैसा भी आए, यू आर अ फिजिक्स स्टूडेंट, यू आर माई स्टूडेंट, यू हैव टू डिराइव. आप समझ रहे हैं? कैसा भी अतरंगी सवाल आए
आपको आंसर मिलना ही चाहिए किसी भी हालत पे, क्योंकि आपको क्या समझाया गया है, कंसेप्ट डिराइव किया है मैंने, कंसेप्ट डिराइव किया। आप पूरा टेक्स्ट बुक छान के देखो आपको नहीं मिलेगा, बट आपको कंसेप्ट डिराइव करके दिया है, यानी कि कैसा भी सवाल आए आपके सामने आप खुद से डिराइव कर पाएंगे। आई एम सुपर कॉन्फिडेंट दैट वॉट एवर क्वेश्चन आई गिव यू नाउ यू विल बी एबल टू डू इट बिकॉज द concept has already been derived. So then we studied about droplet, just like a bubble. The droplet is also very, very important. The droplet ka size is considered to be that of the shape of a sphere. And then we looked at the charge of every drop. Don't forget, what is it? N times of Q. What is the volume of each droplet? From the volume of each drop, which is N times the volume of each droplet, तो हमें क्या मिला है, यानी कि यहाँ क्या हम बोल सकते हैं कि V इज इक्वल टू N टाइम्स ऑफ स्मॉल v, है कि नहीं? यहाँ जो आपने किया है वो आप बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप इज इक्वल टू N टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉपलेट। यस और नो? वहां से हमारी शुरुआत हुई, फिर हमने रेडियस का रिलेशन लेके आए जिसमें n⁻⁴ था, क्योंकि हमें पता है कि इट अर्थ इज अ स्फीयर। हमने कैपेसिटेंस फॉर स्फीयर का फॉर्मूला आपको बता दिया, यानी कि स्फीयर के दो फॉर्मूला होते हैं। एक अगर शेल शेप में है तो क्या है फॉर्मूला, 4πε0 AB/b - a, जो मैंने बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में बताया। वो कब होगा? जब एक शेल के ऊपर दूसरा शेल बैठा हुआ है, कॉन्सेंट्रिक नेचर में वो यूज करेंगे। इसको कब यूज करना है? जब वो पूरा सॉलिड है। इसलिए आपको अर्थ का डिफाइन करके दिया, क्योंकि अर्थ शेल नहीं है, हम बाहर और कोई अंदर नहीं रहता है। यस और नो? अर्थ पूरा का पूरा स्फीयर है, पूरा का पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसलिए उसका 711 माइक्रोफैरेड ये 4πε0 कैपिटल आर से डिराइव करके आएगा। क्लियर है? नाउ then from that we removed c, capital C is equal to n⁻⁴ small c। फिर हमने कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल अप्लाई किया, दैट इज V इज इक्वल टू Q/C, और हमें लाया n⁻⁴ of small v। V stands for the potential of the big drop, which is n⁻⁴, the potential of each droplet। उसके बाद हम एनर्जी का फॉर्मूला लेके आए। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एनर्जी QV से सॉल्व करें, या ½ Q²/C से सॉल्व करें, या आप ½ CV², कुछ भी फॉर्मूला लगा हुआ करके देखो। समझ रहे हैं? जब मैं एक फॉर्मूला डाल रही हूँ, आपको दूसरे फॉर्मूला से ट्राई करके देखना है। आप कुछ भी फॉर्मूला डालो, आपको n⁵/3 ऑफ स्मॉल w मिलेगा। इज दिस क्लियर? सो n⁵/3 हमें हमारा एनर्जी का रिलेशन मिला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी ऑल्सो ट्राइड सिग्मा, जो मैंने दूसरे ग्रुप जो है उनको होमवर्क में दिया था। सिग्मा इज इक्वल टू n⁻⁴ ऑफ स्मॉल सिग्मा, ये भी आपको डिराइव करके दिया है। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? Yes or no? So in the next lecture, I am going to ask you some very important questions related to capacitor before I start with the biggest, one of the most difficult derivations on page number 207 and 208. That is filling the capacitor, यानी कि याद है हमने ढूंढा है capacitance of a parallel plate capacitor without dielectric, हमने किया है। अब हम करने वाले हैं capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric, which will take us an entire lecture to understand because it is one of the toughest derivations of capacitor। अगर वो आ गया then हमारा capacitor part अपने मुट्ठी में है, फिर हम सारे जो है कैपेसिटेंस का हम कंक्लूजन दे सकते हैं एंड देन मूव फॉरवर्ड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, सेकेंड पार्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड थर्ड पार्ट इज कैपेसिटेंस। क्योंकि कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने कैपेसिटेंस पहले करवाया। आर यू गेटिंग इट? अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का करेंगे, जिसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यानी कि मेजॉरिटी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कवर कर चुके हैं, यानी कि इतने नॉलेज से भी आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन आए आप कर पाएंगे। इज इट क्लियर? सो दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। टेक केयर, stay safe, don't leave the house if not necessary. Okay, thank you so much, bye bye, take care.
Yes, good night, everybody. Take care. Bye bye. Good night.